Praise the Lord. Testimony by Sister Mala. For the blessed time which the Lord has given me to stand amidst you and to testify about the name of God, I glorify God, I praise God. I was born in a non-Christian family. मेरा पालन पोषण हुआ और मैं उस धर्म के लिए बहुत जलन के साथ और कट्टर होकर दिखाई देता. And in the religion in which I was born and nourished and cherished according to the customs of that religion, and I was very zealous for my religion. बचपन से ही मुझे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ी तीव्र आशा मेरे जीवन में थी. And from my childhood there was a great desire in my heart to attain God. मेरे 8 साल की उम्र में मैं 9 उपवास लेकर मैं किसी भी तरह ईश्वर को प्राप्त करना है करके मेरे मन में एक आशा उत्पन्न हुई. In the 9th year of my life, there arose a desire in my heart that I will fast and pray and that somehow I must attain my God. कुछ दिनों के बाद ऐसे मेरे जीवन जैसे मैं बढ़ती गई ऐसे मैं पाप में और संसार में खोती गई. But as I grew up, I was lost in the world and the worldliness. मैं किसी को मैं घर में एक ही बेटी होने के कारण मैं बहुत प्यार से पलने के कारण मैं अपने आप को बहुत कुछ समझ के मैं अपने आप को दुनिया के लिए समर्पण करती रही. Because I was only daughter to my parents and I used to think very high of myself. इतना ही नहीं, लेकिन एक दिन मेरे जीवन में एक ऐसा दिन आया कि मेरे शरीर में एक बहुत बड़ा बीमारी आया. But there arose a day in my life where I started suffering from a very great sickness in my body. उस समय में उस बीमारी में तड़पने के कारण मैं कहीं ईश्वरों को मैं बचपन से जिनको मैं ध्यान करती थी उनको मैं एक एक करके मैं बुलाने लगी. Because I was very badly afflicted with that disease, and one by one I started calling upon the names of the God whom I was worshipping since my childhood. लेकिन किसी ने भी मुझे उत्तर नहीं दिया. But I didn't receive no God answered me. इस तरह मेरी मम्मी जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी इसलिए उनको कुछ यीशु मसीह के बारे में कुछ तो पता था. Because my mother had studied in a missionary school and she knew something about Christ. वो हमेशा गुप्त से प्रार्थना करती रहती थी, बाइबल पढ़ती रहती थी. Always she used to pray in secret, she used to read Bible. लेकिन उस बात को मैं बहुत बुरा मानती थी और उसको मैं इतना सताने वाली थी, उसके बाइबल को मैं छुपा देती थी और वो जब भी प्रार्थना करती थी तभी मैं जोर जोर से सिनेमा गीत लगा के और मैं अपनी मर्जी करती थी और उनको बहुत ही गुस्सा करती. Because I considered this a very bad thing to read Bible, therefore I used to hide her Bible, and when she used to Bible I started to play the cinema songs on the radio. ऐसे करके मैं मेरी मम्मी को बहुत सताने वाली होकर दिखाई दी. And I used to afflict my mother like this. लेकिन मेरे मम्मी का एक ही प्रार्थना था, परमेश्वर किसी भी तरह से मेरा बेटी को तू किसी भी तरह से तू जीवित परमेश्वर करके जो तुझे इतना सताती है उसको तू जीवित करके प्रकट करके दो. And somehow my mother always used to pray, oh my God, that you visit my daughter and you reveal to her that you only are the living God. ऐसे एक बीमारी की वजह से परमेश्वर ने मेरे साथ मुलाकात की. And through a sickness God he visited me. मैं 3 महीने तक मैं हॉस्पिटल में बहुत ही बुरी तरह से तकलीफ उठा रही थी. For 3 months I was admitted in a hospital and my state was very bad. और क्या बीमारी करके कोई भी उसको पता लगाने के बिना ऐसे एक्सरे करने के बाद and nobody could know what is the disease, and only after taking an x-ray मेरे फेफड़े के अंदर पानी भर गया था और 3 होल and my lungs were filled with water and there were 3 holes in it. ऐसे करने के समय डॉक्टर्स ने बोला कि किसी भी तरह से इसका जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन 3 दिन के बाद इसको ऑपरेशन के द्वारा वो जो जी सकी तो ठीक है, नहीं तो आपका खुदा के हाथ में सौंप. And doctor said it is very difficult for this girl to live. After 3 days we are going to operate on her, and if she lives it is okay, otherwise. लेकिन मेरी मम्मी का जो विश्वास था वो यीशु मसीह पर था. उसने 3 डे फास्टिंग लेके किसी भी तरह से मुझे बचाने के लिए उन्होंने बहुत प्रेयर किया. But my mother, she had a firm faith on Jesus and she took 3 days fasting and she prayed for my healing. डॉक्टरों के कहने के मुताबिक मेरे शरीर में और एक बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए. According to the saying of the doctor, there was not even a drop of water in my body. लेकिन मैं उस दर्द से इतना तड़पती थी और मेरी मम्मी को मैं बोलती थी, मम्मी मुझे कोई पॉइजन दे दो, कैसे भी मुझे पानी दे दो, मैं पानी के बिना मरना नहीं है. That pain used to torment me very much and I used to tell my mother, give me some poison, I want to die. लेकिन मेरी मम्मी ने बहुत प्यार से मुझे एक बात बोला,
मुझे बेटी तू आज मर गई तो कहाँ जाएगी, तू यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो नरक में जाएगी। But my mother, she very lovingly told me, my child, if you die today, where will you go? You will go to hell. You haven't accepted Jesus, therefore accept Jesus in your life. उस समय इतना मैं बीमारी की हालत में भी मेरी मम्मी के ऊपर मैं बहुत गुस्से से गुस्सा किया मैंने। I was very badly sick, but still I was annoyed with my mother for this thing. उस रात ही में जब सोने के टाइम में बहुत रोई और दर्द से और दुख से मेरा दिल इतना टूट गया और कोई आशा के बिना ही मैं इतना रो रही थी कि मैं जन्म से जिस ईश्वरों को मैंने ध्यान किया है, लेकिन वो कोई भी मुझे आज मदद नहीं करता। That night I was very badly, I was weeping and I was in much pain, and I was thinking in my heart from my childhood, the Lords whom I worship, they didn't answer me. उस समय मैं बहुत रोते रोते ऐसे अचानक ही मैं सो गई। And while I was weeping so bitterly, and suddenly I slept off. मेरे मम्मी का आवाज में मुझे बहुत मीठी आवाज से मुझे 2 बार किसी ने आवाज दिया। And in my mother's voice, somebody called me in a very sweet voice twice. मैं उठ के देखने से मुझे कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन बहुत बड़ा प्रकाश मेरे ऊपर आते मैं देखा। When I got up and saw, I couldn't see anything, but there was a great light shining upon me. उस समय मैं जो डर गई और मैं बोला कौन है। मैं सोचा कोई टॉर्च मेरे ऊपर मार रहा है। And at that time I was very afraid. I got up and I asked, who is there? Who is there? I thought somebody is focusing his torch upon me. उसी प्रकाश में से मुझे आवाज आया कि तू कहती है मुझे बचाने के लिए कोई नहीं है, लेकिन मैं तेरे मम्मी का परमेश्वर, मैं तुझे बचा सकता हूँ। And from that light I heard a voice. You say, there is nobody to help me, to save me. I am the Lord of your mother. I can save you. उसी रात में बहुत रो के पश्चाताप के मेरे एक पापों को मैंने मानकर और मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया। At that night I wept very bitterly, and one by one I started confessing my sin and accepted Jesus as my personal savior. सचमुच जो मैं इतना दिन से वो बीमारी से कष्ट उठाती थी, वो एक ही रात में परमेश्वर ने मुझे मेरे शरीर में बहुत सी शांति से मुझे महसूस करने के लिए मदद की। For so many days I had been afflicted by this sickness, but suddenly in one night, in a moment, my Jesus, He healed me. जो 3 दिन के बाद जो ऑपरेशन था, लेकिन मेरी मम्मी को एक विश्वास था कि कैसे भी परमेश्वर मेरी बेटी को छूकर चंगा किया है। After 3 days there was my operation, but my mother had this firm belief that somehow Jesus has touched my daughter and has healed her. डॉक्टर्स ने कहा था उसे एक बूंद भी पानी नहीं देना, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरा तड़कना देखकर वो ऐसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ऐसे मुझे 3 बूंद पानी पिलाया। And doctors had told my mother not to give me even a drop of water, but my mother, she prayed, and in the name of Father, Son and the Holy Ghost, she gave me 3 spoons of water. इसी समय में मेरे शरीर में मैं अद्भुत चंगाई को मैंने महसूस किया। At that time only, instantly I felt an instant healing in my body. मेरा मम्मी ने फिर डॉक्टर्स को बोला और एक बार उसको एक्सरे करके देखने। My mother told the doctors again, you take an X-ray of my daughter. वो मेरे जीवित परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह चंगाई दिया, ना ही कोई पानी था, ना ही कोई होल था। तीसरे दिन परमेश्वर ने मुझे अद्भुत चंगाई दिया। And the X-ray was taken, and there was no hole, there was no water. God had wonderfully, He had healed me. इसी तरह मैं मेरे प्रेमी परमेश्वर को मेरा निजी जीवन में एक उद्धारकर्ता करके मैंने ग्रहण किया। And that is how I accepted my beloved Jesus as my personal savior in my life. ऐसे में बपतिस्मा लेने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। And God helped me to obey Him in the waters of baptism. बपतिस्मा लेने के बाद मैं बॉम्बे कन्वेंशन में 2-3 हफ्ते के बाद गई। And after taking baptism, after 2-3 weeks, I went for Bombay Convention. मेरे मन में बहुत दुख था, परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा को माना है, लेकिन तू मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा तू मुझे अभिषेक करना। There was a desire in my heart, oh my Lord, I want to obey all your commandments, but you anoint me with your Holy Ghost. पहले दिन भी मैं प्रेयर में ऐसे बैठी और निराशा के साथ उठ गई। And first day I sat in the prayer, and in a very discouraged state I got up. दूसरे दिन भी मैं पवित्र आत्मा के लिए वेट करके ऐसे मैं निराशा के साथ फिर मैं उठ गई। Second day also I waited for the Holy Ghost, but with discouragement only I got up from the prayer. तीसरे दिन मेरे मन में बहुत बड़ी निराशा आई, नहीं परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा नहीं देगा करके उस कन्वेंशन विलेपार्ले कन्वेंशन ग्राउंड को छोड़कर मैं रेलवे स्टेशन में आ गई। And third day a great discouragement it engulfed me, and I left the Vileparle faith home and came to railway station. ट्रेन का वेट करने के समय कोई मुझे ऐसे धक्का मार के तो वापस जाओ उस ग्राउंड में, तो वापस जाओ, आज तेरे लिए जीवन है। And while I was waiting for the train, I felt as if somebody is pushing me and telling me, you go back to the convention ground, God will bless you with the Holy Ghost.
मेरा मन मानने नहीं से भी मैं जबरदस्ती से मुझे कोई धक्का मार रहा है करके ऐसे करके मैं उस ग्राउंड में जाके फिर बैठ गई। Though my heart was not ready to obey, still as if somebody was pushing me, I was pushed back to the convention ground. बहुत निराशा के साथ मैं सबसे पीछे आंखें खोल के और मैं बहुत कठोर दिल से बैठी, परमेश्वर अभी तक मैंने तुझे मांगा था, अभी मैं नहीं मांगूंगी, तू ही मुझे अभिषेक करना चाहिए, तू ही मुझे, ये लोग कैसे उछलते हैं, कैसे आत्मा में खुशी मनाते, ऐसे तू ही मुझे करने से मैं तुझे जीवित परमेश्वर मानूंगी। In a very dejected state, I sat back and I said, Lord, hitherto I have asked for the Holy Ghost, but now I will not ask for the baptism of the Holy Spirit. You only have to anoint me and help me to enjoy in the Holy Ghost like as other people are enjoying. मैं नहीं जानती थी कैसे मेरा शरीर एकदम कांपने लगा और मुझे ऐसे एक अभिषेक परमेश्वर ने मुझे ऐसे उठा के फेंका। मैं सबसे लास्ट बैठी थी, लेकिन मैं जब आंख खोल के देखी हूँ तो मैं स्टेज के पास होकर बैठी हूँ। I don't know how suddenly a great anointing overtook me and I was sitting in the rear and suddenly I found myself that I had come to the front part. ऐसे मेरे परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए मदद किया। And God helped me to receive the baptism of the Holy Ghost. उसके बाद परमेश्वर मुझे कई बार सेवा के बारे में दर्शन वचन के द्वारा और कई बातों के प्रोफेसी के द्वारा परमेश्वर मेरे साथ बात। And after that God spoke to me many times about joining the ministry through visions and dreams and through the word of God. लेकिन मैं परमेश्वर को बोलती, परमेश्वर तू मुझे जो कुछ बोलेगा मैं करूंगी, लेकिन तू सेवा के बारे में मुझे नहीं बोलना, वो मुझसे नहीं होगा। But I told Lord one thing, Lord, whatever you say I will obey, but if you say go and serve me, I'm not ready to do that. मैं लगातार इसे इनकार करने से भी परमेश्वर मुझे छोड़ा नहीं, परमेश्वर मुझे फिर भी दर्शन देता रहा, बात करते रहा। Continually I was saying to Lord, no, I will not serve you, but still the Lord, he didn't leave me and he was continually speaking to me. आखिरी में मैं सेवकों के डर से और मम्मी के डर से मैं चर्च में तो जाती रही, लेकिन मैं आंख खोल के बैठती रही क्योंकि मैं डरती थी मैं आंख बंद करने से परमेश्वर मुझे कोई दर्शन देगा। Because of the fear of the servants of God and of my mother, I used to go to faith home, but I never used to close my eyes. I used to sit in the prayers with my eyes open, fearing that God will give me a calling. ऐसे कितना दिन मेरे जीवन में ऐसे होता रहा, लेकिन एक मीटिंग में मैं बैठने से कुल्ली एक हमारे फेतों में एक जो सिस्टर बनी है उनका मीटिंग में मैं गई थी। And one of my sister who had joined the ministry during her prayer, I went there. मैं उस आँख खुले होते मुझे परमेश्वर ने एक दर्शन के बारे में मुझे दिखाया। And when I opened my eyes, God showed me a vision. एक बहुत बड़ा सिंहासन है, उसके दोनों साइड जो छोटे-छोटे सिंहासन है। And there is a great throne, and on the east side of it, and on the sides of it, there are two small thrones. उस सिंहासन के ऊपर एक श्वेत वस्त्र वाला वस्त्र पहने हुए एक इंसान बैठा है, लेकिन वो बहुत चमक रहा है। And on the throne there is a person sitting clad in white, and his garments were shining. और उसके एक साइड में जो सिस्टर के मीटिंग था, वो सिस्टर के ऊपर मुकुट पहने हुए उनके एक साइड बैठी है। And the same sister I saw sitting on the one side of the throne wearing a crown. और एक सिंहासन ऐसे खाली है और उसके ऊपर एक मुकुट है, लेकिन वो व्यक्ति मुझे बोल रहा है वो तेरे लिए, तू इधर बैठो। And on the other side there was also a small throne, but it was empty and it was engulfed in darkness, and somebody was telling me, it is your throne, it is empty, you have to fill it. उसके बाद मैं फिर भी अपने मन को कठोर करती रही और मैं चर्च में जाने के लिए कितना दिनों तक मैंने छोड़ दिया। And still I hardened my heart and stopped going to church. हे परमेश्वर, तू मुझसे क्यों ऐसे चाहता? मैं तो तेरे लिए मैं जीवन बिताऊंगी, लेकिन मैं सेवा में नहीं जाऊंगी। Oh Lord, why are you doing this to me? I will spend my life for you, I will give my life for you, but I will not join the ministry. लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे प्यार करता था, वो परमेश्वर मुझे कहीं किसी बात के लिए नहीं छोड़ा। But my God who loves me, he didn't leave me according to my wishes. जब भी मैं सेवा के लिए कितना बार मैं इनकार करने के समय जिस देश में मैं रहती थी, वो एक साल में उधर बहुत बारिश आ गया और बहुत बड़ा हाड़ आ गया। And though I said to Lord, no, I will not join the ministry. The place where I was living, it was one day it rained cats and dogs over there. दूसरा साल में देखने से बहुत बड़ा भूकंप के द्वारा कितना लोग नाश हो गए। And nextly there was a great earthquake over there, and many people perished because of that earthquake. और तीसरा साल में जब उस देश में हिंदू और मुस्लिम लोग का बहुत बड़ा लड़ाई हो गया। And thirdly, on the third year, they break out an ethnic war. उस लड़ाई में कितना जवान बच्चों को, कितना जवान लड़कियों को नाश किया गया। And in that war, many youths, many girls and boys, they were destroyed, they perished.
उस टाइम में मैं अपने आप को हलीम किया, जैसे योना वो परमेश्वर की आज्ञा को माना नहीं और उस नाव में बहुत बड़ा हलचल मच गया। मैं ऐसे परमेश्वर से बहुत माफी मांग, परमेश्वर मैं तेरी बातों को नहीं माना है, इसलिए मेरे वजह से ये सब नाश को मैं देख रही हूँ। And because therefore I humbled myself, as in Jonah's case, he didn't obey God, and there arose a great storm in the river. Like Jonah, I said, "Oh Lord, I will obey you." I humble myself. फिर भी मैं पूरी तरह से परमेश्वर को अपने परमेश्वर के लिए मैं सौंप नहीं रही थी। But still I was not surrendering to my God. तभी परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया, मेरा बेटी अगर इस साल में तो मेरे लिए अपना जीवन को नहीं देगी तो अगला साल तेरे लिए नहीं है। Still God spoke to me. He said, "My daughter, if you will not surrender to me, then next year you will not have your life with you." ऐसे मैं उस बात को मैं देख के बहुत डर गई और मैं परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करने के लिए मैंने एक दृढ़ निर्णय लिया। I got very afraid and I decided in my heart that I will surrender to God. ऐसे में घर में किसी से बोलने के बिना ही कन्वेंशन देखने के लिए जा रही करके ऐसे मैंने सेवा के लिए मैंने अपने आप को And I told my parents I'm going to see the convention. I didn't tell anybody, any of my relatives or parents, and I'm going to join the ministry. उस समय में जब मुझे फॉर्म देना था, उस समय में मुझे एक सिस्टर ने बोला कि बेटी आप इस साल में नहीं आना, अगले साल आओ। And when the form was given me, one sister said, "Child, you don't come this year, you come next year." क्योंकि आपके साइन आपके बारे में गवाही देने के लिए कोई नहीं है। Because there is nobody to testify about you. उस समय मुझे बहुत दुख हुआ और रात पूरा मैं उस फॉर्म को लिए हुए, वो फॉर्म खाली था लेकिन उसको लिए हुए मैं बहुत रोती रही, घुटने में खड़ी हुई, परमेश्वर तूने बुलाया इसलिए मैं आई हूँ। And that day I was very much grieved at heart, and that night I wept and prayed, Lord. I placed my hand on the form and said, Lord, you have called me. That is why I have come here to join the ministry. अगर इस साल में इस साल में अगर मैं तेरे लिए नहीं होगी तो फिर मैं अगले साल नहीं आ सकती हूँ। And if this year I do not come out for the ministry, then next year I won't be able to come out for the ministry. ऐसे करने के समय परमेश्वर ने मुझे बताया, ये वो खाली फॉर्म दिखा के उसके ऊपर एक सफेद कपड़े वाला एक बहुत सुंदर सा हाथ आके उस खाली फॉर्म के ऊपर उसने साइन किया है। And in a vision I saw that a white hand, a very bright hand came, a very beautiful hand came and signed that form for me. तभी से मेरे मन में बहुत बड़ा आनंद और शांति हुआ क्योंकि मेरे प्रेमी ने मुझे ग्रहण किया है। And my heart was filled with joy and with great peace.